Hello viewers, I am Deepti. After a long wait, I am with you with my video on predicted questions from the chapter Calorimetry for ICSE Class 10 Physics. So starting with first question. What is the difference between heat and temperature? And obviously other than their definition, what is the SI unit of heat and SI unit of temperature? So SI unit of heat is Joule and SI unit of temperature is Kelvin. And one more question from this topic is difference in 1 degree. So the difference in 1 degree on both the scales is same. This might be asked in your paper. Mention the factors affecting the quantity of heat absorbed or released, and you know all the factors. They are directly proportional to mass, specific heat capacity and change in temperature. So mc delta T. Next is define specific heat capacity. Give its SI unit and factors on which specific heat capacity depends. And it does not depend on the mass of the body since it is the characteristic property of the substance of the body. As you know the formula C is equal to C dash upon M. थर्मल कैपेसिटी अपॉन m, तो मास से हमने डिवाइड कर दिया. सो इट डज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि मास को हमने यूनिट केजी ले लिया या यूनिट ग्राम ले लिया. Define thermal capacity or heat capacity and give its SI unit, Joule or Kelvin, and mention the factors affecting the thermal capacity. It depends both on the substance and the mass of the body. More the mass, more is the heat capacity, because C dash means thermal capacity is equal to mass into specific heat capacity. इन दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से एक पेपर में आपके सामने जरूर होगा. Next, thermal capacities of substances A and B are same. If mass of A is more than mass of B, then अब उसको अप्लाई करो. यहां पर हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं. A part, which substance will have more specific heat capacity? किसकी ज्यादा होगी? उन्होंने क्या दिया है? थर्मल कैपेसिटी सेम है, C डैश सेम है, लेकिन मास A का ज्यादा है. सो अभी पूछा क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. The specific heat capacity is inversely proportional to mass. A has more mass, so B will have more specific heat capacity. So part A answer is B. Now B part, which substance will show greater rise in temperature if the same amount of heat is supplied to both? So specific heat capacity C is equal to Q upon M delta T. It means rise in temperature of a substance A will be more as it is a good conductor. So यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा? कि उसने बोला है ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, तो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर जिसमें होगा वो गुड कंडक्टर होगा, तो गुड कंडक्टर मींस ए आएगा यहाँ पर. तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बुक में से कवर करने हैं. जैसे आपको दो सब्सटेंसेस की हीट कैपेसिटी, यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है और पूछा है विच इज ए गुड कंडक्टर, विच इज ए पुअर कंडक्टर, ये उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज भी गिवन होंगी. तो सिर्फ उससे आपने आइडिया लगाना है. जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो क्या होगा? वो गुड कंडक्टर होगा, और जिसकी ज्यादा होगी वो पुअर कंडक्टर होगा. जैसे आप वाटर के एग्जांपल लेके इसको याद रख सकते हैं. Next question. A temperature time graph of three substances A, B and C is shown below. All the substances are provided heat at equal rate and are of same mass. Refer the graph and identify which substance has low specific heat capacity. So A, B, C तीनों के ग्राफ आप देख रहे हो. स्लोप दी हुई है तीनों की, आपको स्लोप से पूरा अंदाजा लगाना है. आप इसके लिए टाइम और टेम्परेचर एक्सिस के ऊपर किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे. जैसे हमने टाइम एक्सिस पे टाइम को ले लिया और उसी एक ही टाइम पे मान लेते मैंने 5 सेकंड पे ये टाइम लिया, और उसी एक टाइम पे मतलब इतनी देर हम उसको हीट दे रहे हैं, उतना 5 सेकंड प्रोवाइड करने के बाद सी का कितना टेम्परेचर हुआ है, बी का कितना टेम्परेचर हुआ और ए का कितना टेम्परेचर हुआ, इन तीनों को हम नोटिस कर लेंगे कि किसका ज्यादा दिख रहा है. आपको किसका दिख रहा है ग्राफ में से? अगर आप एक ही टाइम पर तीनों का टेम्परेचर नोटिस करोगे तो ए का ही ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है. तो substance A will have low specific heat capacity because the rise in temperature of A is more when compared to B and C according to the graph. तो यहां से हम उनका पूरा अंदाजा लगा सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस पे हमेशा एक डॉटेड पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ कर ले. पहले एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दोनों तरफ की लाइन से आपको पूरा आइडिया देंगे. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. आपको पता है कैलोरीमेट्री में दो न्यूमेरिकल पक्का फिक्स है आपकी, एक फर्स्ट एक्सरसाइज और एक सेकेंड एक्सरसाइज. तो ये आपको करने ही करने. एक तो आपको कंपल्सरी में भी मिल जाएगा. डिफाइन कैलोरीमेट्री. मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री. What is calorimeter?
Cylindrical vessel used to measure the amount of heat gained or lost by a body when it is mixed with another body. This is a calorimeter. What material is used for calorimeter? Now questions related with calorimeter only. What material is used for calorimeter? Give reason for selecting the material. It is made up of thin sheet of copper and reason. Copper is a good conductor of heat. It has low specific heat capacity. So the heat capacity of calorimeter is low and the amount of heat energy taken by calorimeter from the contents to acquire its temperature is very small. Next question related with calorimeter itself. What is done to minimize heat losses in a calorimeter? To prevent the heat loss by, तीन तरह के हीट होते हैं हमारे पास, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन. तो तीनों तरह के हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? टू प्रिवेंट रेडिएशन, सबसे पहले रेडिएशन के लिए द आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द वेसल आर पॉलिश्ड टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय रेडिएशन. नेक्स्ट कंडक्शन, it is placed inside a wooden jacket and space between the calorimeter and jacket is filled with some poor conductor such as wool or cotton, etc. Next is convection. So prevent the heat loss by convection. It is covered with wooden lid and lid has two holes, one for stirrer and another for temperature in ki thermometer. Next is, what is the principle of method of mixtures or principle of calorimetry? So first statement which we need to write here is, if no heat energy is lost to the surroundings, then heat energy lost by the hot body is equal to heat energy gained by the cold body. And this principle is based on law of conservation of energy. And next, numerical based on principle of calorimetry. तो numericals के concept आपको बहुत strong होने चाहिए. Numericals के लिए मैंने separate videos बनाई हैं. आपको calorimetry पूरे chapter के लिए lecture video भी मैंने बना के दी हुई है. Moreover, numericals के लिए separate video भी हैं. Most important numericals करके calorimetry के numericals आपके साथ मैंने share भी किए हुए हैं. फिर भी समझ नहीं आएंगे तो I will solve. Tell me in the comment section. High specific heat capacity of water 4200 joule per kg per Kelvin. आंसर है ये. क्वेश्चंस क्या होंगे? रीजंस फॉर फोमेंटेशन, कूलेंट, थर्मल रेडिएटर, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग विंटर, प्रोटेक्शन ऑफ बॉटल्ड वाइन्स, द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट. All these questions have a single line answer. 1 mark for this and 1 another mark for your explanation about the statement and this effect. High specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per Kelvin. Next, give reason why the base of a cooking pan and electric press is made thick, मोटी होती है, because it has large heat capacity. मैंने इसको अलग से mention क्यों किया? क्योंकि ये heat capacity है, specific नहीं लिखना इसमें. Next is, define latent heat and specific latent heat of fusion and factors affecting both of them. आपको पता है आप physics पढ़ रहे हो, factors तो आपको आने ही चाहिए. Next, heating curve for water. Draw the rough sketch of this curve for other substances, heating as well as cooling. दोनों तरह के कर्व आपको रीड करने आने चाहिए, ड्रॉ करने आने चाहिए. Questions based on this. An ice of temperature minus 20 degrees Celsius is heated till the steam attains a temperature of 120 degrees Celsius. Draw a graph between temperature and time. So starting with negative axis minus 20, then coming to 0, पहले ice थी, then melting, then water, then boiling, then steam. ये मैंने आपके साथ वीडियो में पूरा शेयर किया है, इसको अच्छे से ग्राफ को समझाया है मैंने आपको कि आपको पता होना चाहिए जब स्लांटिंग लाइन है इट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है. तो जब न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम mc डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाएंगे और c हम जो फेज ले रहे हैं, जैसे हमने आइस का लिया तो यहाँ आइस का हम c लेंगे. नेक्स्ट, अगर हम हॉरिजॉन्टल फेज दिखा रहे हैं तो आपको पता है ये लेटेंट हीट है. दो हॉरिजॉन्टल फेज आती हैं, पहली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हो जाएगी और सेकंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम हो जाएगी. तो न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज गिवन है, आपने सिर्फ वहां से उठानी है. फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग रेफर टू माय न्यूमेरिकल्स वीडियो. अभी के लिए आपको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है. तो टाइम इन मिनट्स, क्योंकि टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है तो हम उसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं. टेम्परेचर उस पर डिपेंड कर रहा है तो उसको हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे. वैल्यूज वाटर के लिए तो आपको पता ही है 0 और 100 डिग्री, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो वही का वही रहेगा. किसी और सब्सटेंस की आ जाएगी तो हम उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर ले सकते हैं अगर हमारा ग्राफ हम जैसे ड्रॉ किया हुआ है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अमाउंट ऑफ आइस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट रेट
as shown in the figure below. What phases are represented by OA, AB, BC and CD? तो इसी चीज को और आपको पक्का बताने के लिए पहले हमारे नेगेटिव फेज आ रही है, मींस कि -10 डिग्री का टेम्परेचर आ रहा है, उसके बाद AB आ रहा है। तो AB इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैंने क्या बताया था, तो AB क्या रिप्रेजेंट कर रही है? AB मेल्टिंग ऑफ आइस रिप्रेजेंट कर रही है। जो OA है, जो हमारी नीचे वाली फेज आ रही है OA, उसमें क्या है, वो आइस है, आइस है और आइस टोटल आइस ही है। अभी आइस ही है, आइस का ही टेम्परेचर -10 से लेकर 0 तक जा रहा है। लेकिन जो AB लाइन है उसमें आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 0 के बाद ही आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस से वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर की तरफ मेल्ट होती जा रही है पूरी AB फेज में। देन BC फिर हमारे पास स्लांटिंग लाइन आएगी, तो राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर। इट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 डिग्री से बढ़ता 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 100 तक पहुंच जाएगा। और CD पे क्या हो रहा है, फिर बॉइलिंग हो रही है। लेकिन बॉइलिंग होने के लिए फिर आपको 100 पता है, तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पहले क्या है, वाटर है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम बनेगा। जब वो पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो अभी CD के लिए हम बॉइलिंग ऑफ वाटर, BC के लिए राइज इन टेम्परेचर और AB के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस, ये मीन्स लेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट, कूलिंग कर्व ऑफ ए सब्सटेंस इज शोन बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट। जब हम ले लेते हैं तो कूलिंग कर्व है, जब देते हैं तो हीटिंग कर्व है। फर्स्ट पार्ट, हाउ मच इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको ग्राफ यहाँ पर गिवन है, हाउ मच इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो आपने सिर्फ ग्राफ से रीड करना है। AB फेज में 200 का टेम्परेचर था, BC पे 150 का आया, CD पे फिर नीचे होके 100 पे आया, DE पे फिर कांस्टेंट हो गया और उसके बाद EF पे कम होके 100 से 50 आया। तो हाउ मच इज द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर बॉइलिंग फेज आपको कौन सी दिखाई दे रही है, ऊपर ही होगी ना। तो यहाँ जो BC का हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आया, इट मींस 150 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो BC हमारे को, BC जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है बॉइलिंग फेज। What DE indicates, DE क्या दिखा रहा है हमारे को, DE फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो DE इंडिकेट्स फ्रीजिंग। यहाँ क्योंकि हम कूलिंग कर्व पढ़ रहे हैं, तो अब DE क्या हो जाएगा, फ्रीज कर रहा है उस चीज को, तो फ्रीजिंग आ गया। लास्ट है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये वाटर नहीं है, कोई और सब्सटेंस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर ये 100 पे DE मेल्ट होना शुरू हो रहा है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन मींस मेल्टिंग फेज DE दिखा रही है। ऊपर वाला जो BC था वो बॉइलिंग फेज दिखा रहा था हमारे को। इस तरह से आपने ग्राफ्स क्लियर करने हैं। ग्राफ का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसीलिए मैंने 3-4 कवर करने की कोशिश की है। अदर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग फॉर सब्सटेंसेस लाइक lead, wax, etc., which expand on melting, volume increases. It means directly proportional. For substances like ice, contract on melting and volume decreases. तो जैसे आइस हो गया, वो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मेल्ट होने पे, तो उन केसेस में वॉल्यूम जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। What is the effect of pressure and impurities on melting point? The melting point of substance which contract on melting, अभी हमने पढ़ा contract on melting कौन है, आइस है, तो ऐसे substances के लिए melting point decreases by increase in pressure, यानी pressure और melting point में inverse relation होगा। Melting point of substance which expand on heating, यानी कि lead और wax which expand on melting, इनमें melting point increases by increase in pressure, यानी direct proportionality होगी। नेक्स्ट है impurities से क्या होगा, melting point decreases in the presence of impurities in it. For example, melting point of ice decreases from 0 to -22 degrees Celsius on mixing salt in proper proportion, and this fact is used in making the freezing mixture, जो कुल्फीज आप समर सीजन में बहुत खुश होके खाते हैं। Now, what is the effect of change in volume on boiling? All liquids expand on boiling. What is the effect of pressure and impurities on boiling point? So first, pressure, boiling point of liquid increases with increase in pressure, so direct proportionality. Vapor pressure of water inside the pressure cooker becomes nearly 1.75 times the atmospheric pressure. So water boils at 120 degrees Celsius due to increase in pressure. That is why pressure cooker में खाना जल्दी बनता है, अच्छा बनता है और जल्दी से नरम हो जाता है, इसीलिए क्योंकि उसके अंदर 100 की बजाय पानी 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियरली 1.75 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। Atmospheric pressure decrease at high altitude. Next point,
जब हम हाइट पे जाते हैं, आप किसी भी माउंटेन या हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, ये हमें पता है। सो वाटर बॉइल्स एट ए टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस, वहां पर पानी 100 से पहले ही बॉयल हो जाएगा। हम प्रेशर कुकर में भी रखेंगे तब भी वो जल्दी ही सीटी मार देगा, विसल जल्दी आ जाएगी। इट मीन्स क्या होगा, कंटेंट को पकने के लिए पूरा टाइम ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि पानी पहले ही बॉयल हो जाएगा। इसीलिए हिली एरियाज में कोई भी चीज बनाने के लिए, जैसे मान लेते हैं हम कुकर में कोई चीज रखते हैं और यहाँ पर 3 सीटी में वो आराम से बन रही है, लेकिन माउंटेन एरियाज में उसी चीज को बनाने के लिए हमें 4 या 5 विसल दिलवानी पड़ेंगी क्योंकि पानी जल्दी बॉयल हो रहा है। Boils at temperature lower than 100 degrees Celsius does not provide the required heat energy to its contents for cooking। आपने देखा भी होगा, कभी आप हिल स्टेशन पे गए होते हो, मैगी बन रही होती है, आप खाने के लिए खड़े होते हो, आपके मुंह में पानी आ रहा होता है जल्दी से बन जाए, लेकिन बनती ही नहीं है भाई, इतनी देर लग जाती है वहां पे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है क्योंकि वो मैं भी खाती हूँ मैगी। नेक्स्ट, impurities। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। तो उसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला है कि हम प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। वी एड सॉल्ट वाइल कुकिंग पल्सेस, तो फिर हम जहां भी हैं थोड़ा तो उससे फर्क पड़ेगा। अदर क्वेश्चंस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। अब ये सिंगल लाइन आंसर है। क्वेश्चंस कितने हैं? इन कोल्ड कंट्रीज वाटर बॉडीज डू नॉट फ्रीज सडनली। Snow melts slowly on the mountains. Weather becomes colder after a hailstorm. Weather becomes mild during a snowstorm. इन सब क्वेश्चन से हमारा आंसर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। 1 ग्राम के लिए 336 जूल हीट चाहिए है, कहां से आएगी? अदर जनरल एप्लीकेशंस ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आर soft drinks are cooled by adding pieces of ice rather than cold water. Protection of vegetables and fruits from damage in sub-zero temperature. Ice candy feels colder than water at same temperature. Again, all these questions have same answer, high specific latent heat of fusion. बस इस चैप्टर में से रीजन जरूर आएगा, इंटरचेंज मत कर देना। जो पहले हमने कवर किए थे वो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है। तो दोनों की वैल्यू भी अलग है, सब कुछ अलग है, दोनों चीजों को मिक्स मत कर देना। यहाँ के कॉन्सिक्वेंसेज अलग करने हैं, वो वाले अलग करने हैं। One more question, the same theme. The graph below represent the heating curve of a substance that starts as a solid below its freezing point. तो AB, then BC, CD, D and EF ये सारी phases दिखाई हैं आपको, टाइम टेम्परेचर ग्राफ ही है। What is the melting point of the substance? अब इस ग्राफ में आपको melting point कितना दिखाई दे रहा है? Melting point means आपकी BC फेज हो गई, तो BC फेज के कॉरेस्पॉन्डिंग आना है और टेम्परेचर वाली लाइन में रीड करना है। 60 से एक ब्लॉक नीचे है, इट मींस हमारा पॉइंट बी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डीई। डीई अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी प्रोसेस दिखा रहा है? डीई बॉइलिंग है, जिसको हम वेपोराइजेशन भी लिख सकते हैं। तो जब एक पहले वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके मैंने भी कॉन्सिक्वेंसेस बताए, पहला वाला है तो ये क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। दूसरा वाला आएगा तो ये बॉइलिंग यानी वेपोराइजेशन हो जाएगा। सम मोर एसोसिएटेड क्वेश्चंस विद द सेम ग्राफ। इन विच लाइन सेगमेंट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग। अब इसी ग्राफ में देखो काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ रही है? कब बढ़ती है? जब लाइन हॉरिजॉन्टल ना हो करके वर्टिकल या स्लांटिंग हो जाएगी। तो ए बी फेज है, फिर सी डी फेज है और फिर ई एफ फेज है, 3 फेजेस हैं। एज द टेम्परेचर इज राइजिंग, तो इन सब केसेस में क्या हो रहा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैपनिंग टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन पार्ट बीसी। यहां इंक्रीज हो रही है। अब बीसी में क्या हो रहा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। जब भी हॉरिजॉन्टल पार्ट आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्यों कांस्टेंट रही? क्यों नहीं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। हीट जितनी भी एब्सॉर्ब हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो रही है।
मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है, तभी तो उनकी फेस चेंज होगी। सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ती जाएगी, जो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता जाएगा, तभी तो वो जाके दूसरी फेज में कन्वर्ट होंगे, और वो सारी एनर्जी हमारे को हीट जो मिल रही है वो इसी चीज में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज है वो हॉरिजॉन्टल फेज में कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस? इसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको आना है डी पॉइंट पे। डीई फेज जो है वो हमारे को बॉइलिंग फेज दिखा रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज एग्जैक्टली डी, और उसके आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके जब टेम्परेचर एक्सिस पे आएंगे तो इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 90 डिग्री सेल्सियस। One more graph related question. The graph below shows two curves, one for water and other for benzene, for the same mass, but variation of temperature with amount of heat supplied. तो दो ग्राफ आपको दिखा रहे हैं और फेजेस भी ए बी बी सी यही लिए हैं हमने, बस उनका सिर्फ इंटरवल जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं वो सेपरेट आएगा, टाइम जो हम हीट दे रहे हैं। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे टाइम नहीं लिया। एक और चीज यहाँ पर मैंने चेंज किया है, हीट एडिड। ये क्वेश्चन मैंने अजय सर की बुक से लिया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। हीट एडिड हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? कौन है जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? मैंने अभी कितनी बार आपके साथ डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल फेज। तो हॉरिजॉन्टल फेज पहले वाली जो बीसी है, तो बीसी पार्ट रिप्रेजेंट्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोनों में ही, चाहे हम इसमें वाटर की बात करेंगे या बेंजीन की बात करेंगे, दोनों ग्राफ बीसी ही दिखा रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मींस ऊपर वाला हो गया। तो लेटेंट हीट में यहाँ पर जो ग्राफ पे नंबर लिखे गए हैं, नाम लिखे गए हैं, वो है डीई। तो डीई फेज हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिखा रही है, दोनों के केस में ही है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बेंजीन। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट क्योंकि हम इस बार कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। CD रिप्रेजेंट्स हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। यहाँ पर CD फेज दिख रही है आपको, जिसमें हम कहते हैं कि लाइन आ रही है, स्लैंटिंग लाइन आ रही है। तो हीट एनर्जी, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस पे हीट एनर्जी है, तो अगर ये चेंज हो रही है, इट मींस हीट एनर्जी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वो चेंज हो रही है। दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को नीचे आप एक्स एक्सिस पे रीड कीजिए। अदर वाली पे जो आगे आ रही है CD में, जो D पॉइंट पे आ रही है वो नियर अबाउट 30 है, और जो C पॉइंट पे आ रही है नियर अबाउट 20 है। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है? 30 माइनस 20, यानी कि 10 किलो जूल की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया। 10 इंटू 10⁻³ जूल भी हम लिख सकते हैं। और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम वाई एक्सिस पे आएंगे, कितना CD फेज ने वाई एक्सिस को कवर किया है। तो वाई एक्सिस पे देखिए, अपर वैल्यू इज नियर अबाउट 80 एंड लोअर वैल्यू इज नियर अबाउट 5, तो 80 माइनस 5 इट मीन 75 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास हीट एनर्जी आ गई, डेल्टा टी आ गया। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी है। Q की जगह का आंसर हमारे पास आया, क्योंकि हीट क्या है, Q की जगह पे हम फिल करेंगे। तो यहां से आप फॉर्मूला के अंदर डालेंगे तो यहां से आपके पास C निकल जाएगा। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी। तो Q की वैल्यू अभी हमने ऊपर कितनी कैलकुलेट की है, जितना भी कैलकुलेशन करा है आपने 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, और उसको आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। Now numericals based on Q is equal to MC delta T, Q is equal to ML, principle of calorimetry, all these are very important and they will carry a large amount of marks with them. Next is what is the meaning of the statement, the specific latent heat of fusion. या इस तरह के और भी questions, what is the meaning of specific latent heat capacity of this substance is this much, इस तरह का कोई ना कोई statement related questions भी इस chapter से expect किया जा सकता है। यहाँ पर हम कर रहे हैं specific latent heat of fusion is 336,000 joule per kg. What is the meaning of this statement? That 1 kg of ice at 0 degree Celsius requires absorption of 336,000 joule of heat energy to convert it into water at 0 degree Celsius. सब कुछ मेंशन करना है, कितनी हीट एनर्जी कितने टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, दोनों चीजें आपने देखना है ध्यान से। This chapter carries 10 plus marks, so this is a very important chapter from examination point of view also, because this is a single chapter which carry more than 10 plus marks. साउंड है, ये है, आपको मैंने पहले सारे डिस्कस किए हुए हैं। एनी डाउट रिलेटेड विद फिजिक्स, आई हैव मेक अ प्ले लिस्ट। Whenever you have any doubt in any of the topics, you can play the playlist.
आपको उसके अंदर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। यू नीड नॉट टू आस्क मी अगेन एंड अगेन, मैम आपने ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, यही मेरा चैप्टर लास्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस का रह गया था, ये भी मैंने आपके साथ अब शेयर कर दिया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी जो नहीं आए होंगे आप प्लेलिस्ट से खोल सकते हैं, क्योंकि बार बार वही चीज एक्सप्लेन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको भी पता है कि मैं वो चीज आपके साथ कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया, और आप मुझसे वही सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अभी तक भी नहीं किया, अब तो लास्ट के 3-4 पेपर बचे हैं, फिर कब करोगे? नेक्स्ट ईयर।